Screen visible है students? Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. today we'll discuss the extrema of function. Extrema of function means maximum or minimum value of a function. See, what happens, what this definition says, if f of a comma b is greater than f of xy, or it is less than f of xy for a particular value of x and y, if this is greater than all other values. अब ये देखो यहाँ पे x and y क्या ले रखा है, वेरिएबल ले रखा है. तो इन वैल्यूज के लिए अगर स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो ग्रेटर आ रहा है, तो उस केस में हम बोलते हैं देयर इज अ मैक्सिमा. इफ दिस वैल्यू फॉर x is equal to a, y is equal to b, if this is smaller than all other values, neighboring values, then there will be minima. तो इसका ये मतलब है, अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में देखें, स्पेसिफिकली फॉर p1, this point, rather than p1 I should use another symbol, mx1 for this one. फाइन. तो इसके जो नेबरिंग पॉइंट्स हैं, इससे ये क्या हो रहा है, वैल्यू हायर मिल रहा है आपको. दिस वन इज हायर पॉइंट. mx2 भी देखिए, ये भी अगर इसके नेबरिंग पॉइंट्स के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके नेबरिंग वैल्यू से ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो रहा है, हायर मिल रहा है हमें, है ना. सो दीज आर द मैक्सिमा. मैक्सिमम का जो प्लूरल होता है वो है मैक्सिमा. मैक्सिमम का प्लूरल. तो एक पर्टिकुलर रेंज के लिए अगर मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन के बारे में बात करूं, आई शुड यूज अनदर color. Say this portion, if I'm talking about this portion, so here it is the value is maximum. For this small range, mx2 is maximum. For another small range, mx3 is maximum, and so on. In this way, what we can say, there will be a maxima if this condition satisfies for maxima. And what about minima? If you go for this one, m and 1, for this range, specifically if we talk about this small range, for this portion, if I'm talking about this portion, m and 1, this particular point, this shows minimum value. And another portion, if I consider for this a small range, again what I can say, m and 2, this is another minimum point. M and 3, this is another minimum point. So in this way, we do talk about a small range. There may be so many maxima and so many minima in entire range. So if we are considering this portion only, if we're talking about this particular portion only, so many maxima we are getting and so many minima. This is also maxima. This one is also maxima because we are talking about a very, very small range. So this is a physical interpretation of maxima minima. But हमें इस पे concentrate नहीं करना है, इसको तो just हम अपने definition के लिए consider करते हैं. We should talk about this portion. Numerical portion पे हम concentrate करेंगे. Working rule of finding of extrema of function. Extreme value. There may be so many extreme values for a small range. So we do use plural of this extrema. Now, what first point says, in the first step, what you have to do? You have to find stationary points. How do we define the stationary points? How do we define a stationary point? By equating to 0 the partial derivative. Why it is so? What is meaning of dy dx? बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं अभी क्वेश्चन करूंगी जो मैंने बताया आप लोगों से. dy dx बेसिकली क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो ये जो dy dx अगर हम सिंगल वेरिएबल के लिए लेते हैं, dy dx 0 का मतलब है कि टेंजेंट उस पॉइंट पर पैरेलल होगा. टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो टेंजेंट कहां पे पैरेलल हो रहा है एक्स एक्सिस के, मैक्सिमा एंड मिनिमा में अगर आप टेंजेंट्स निकालते हैं, these are parallel to x axis. These are parallel to x axis.
सो मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए फर्स्ट पॉइंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी जीरो. तो if y is function of single variable, we should talk about single derivative dy dx. But here function f, here we are talking about function of two variable. I should mention first, f is function of two independent variables. So we are now discussing maxima and minima for function of two variables, as here it is written for several variable. तो सेवरल वेरिएबल ना करके अभी हम टू वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं. देन विल टॉक लेटर ऑन, विल कंटिन्यू फॉर थ्री वेरिएबल्स. तो अभी टू वेरिएबल्स के बारे में अगर मैं बोल रही हूँ, in this case what we need to take care, first point we need to take care, partial derivative must be zero. Del f del x zero, del f del y zero. Why it is so? As I told you that the tangent should be parallel to x axis, और tangent अगर parallel है x axis के, इसका सीधा सा मतलब है कि slope जीरो होना चाहिए वहां पे, है ना. dy dx जीरो होगा. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टेशनरी पॉइंट निकालना. सेकेंड आपको क्या निकालना होता है, सेकेंड स्टेप में आप निकालेंगे आर एस टी. व्हाट इज आर एस एंड टी, व्हाट इज आर एंड व्हाट इज एस एंड व्हाट इज टी. आर आपको पता है सेकेंड ऑर्डर टू टाइम्स पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वो होता है आर. सिंगल टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में, सिंगल टाइम वाई के रिस्पेक्ट में, वो होता है एस. टू टाइम्स आप वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, वो होता है टी, आर एस टी. तो आर एस टी निकाल लीजिए सेकेंड स्टेप में. फर्स्ट आपने क्या निकाला, स्टेशनरी पॉइंट्स निकाला. सेकेंड स्टेप में आपने निकाला आर एस टी. आर एस टी निकाल लीजिए, और इसमें जो कंडीशन है ये है, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, if rt minus s square is greater than 0 and r is less than 0, if rt minus s square is greater than 0, rt minus s square greater than 0 and r is less than 0, in this case what we say, there will be maximum. ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आता है तो मैक्सिमम, ये दोनों कॉम्बिनेशन आता है तो मिनिमम. क्या, rt minus s square is greater than 0 एंड r इज पॉजिटिव, तो उस केस में मिनिमम वैल्यू आएगा. अच्छा, इसमें नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए, आर टी माइनस एस स्क्वायर. इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन जीरो, सपोज ये नेगेटिव हो गया, आर टी माइनस एस स्क्वायर स्टेशनरी पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है, तो उस पर आपको क्या बताना है, देयर विल बी सैडल पॉइंट. एंड इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज जीरो, तब क्या होगा, further investigation is required. We can't say anything कि saddle point है या कुछ है, we don't know. Neither maxima nor minima वाला जो केस होता है वो होता है saddle point. तो ये पॉइंट्स आ गए. थर्ड पॉइंट, बस इसके हेल्प से अब हम मैक्सिमा मिनिमा करेंगे सॉल्व. इतना सभी की कॉपी में आ गया है, यस और नो. नेक्स्ट स्लाइड में मैं दोबारा से ये चीजें पूछूंगी. अभी आपको विजिबल है, नेक्स्ट स्लाइड में विजिबल नहीं होगा. इसमें आपका कोई क्वेरी है, यू मे आस्क. ये जस्ट आपके समझने के लिए है, आपको मेन है इस पर वर्क करना है. इन पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए आप. एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेरी, स्टूडेंट्स? Have you written, all of you? Ma'am, writing. Okay, fine. Ma'am, done. Okay, anybody else left? No? Fine. दोबारा से सुन लीजिए क्या करना है. फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स निकालेंगे. स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, del f del x 0 और del f del y 0. यस, डेल एफ डेल एक्स को जीरो कर देंगे आप, डेल एफ डेल वाई को जीरो करेंगे. इन दोनों को सॉल्व करके जो भी पॉइंट्स आते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे, p1 p2 एंड सो ऑन. x1 y1 x2 y2 and so on. These points are known as a stationary point.
सेकेंड स्टेप में आप निकालेंगे आर. R is second order partial derivative with respect to x. S is second order partial derivative with respect to x once, with respect to y once. ये आप निकाल लेंगे. T आप निकालेंगे डेल टू एफ डेल वाई स्क्वायर 2 टाइम्स ये. इसको निकालने के बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, आपको ये चेक करना है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर एट स्टेशनरी पॉइंट्स एट P1, P2, P3, ये सारे पॉइंट्स पे आप चेक करेंगे. इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ये क्या है ये देखना है. Is it greater than 0, equals 0 or less than 0? Greater than 0 and ग्रेटर देन 0 जब होता है, इसके बाद फिर आपको फिर से क्या देखना है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको चेक करना है कि वेदर आर यू गेटिंग आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव. आर अगर पॉजिटिव है, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0. अगर ये ग्रेटर देन 0 है एज वेल एज आर पॉजिटिव है, तो उस केस में आपको मिलेगा मिनिमम पॉइंट, मिनिमा. और अदरवाइज क्या है, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज पॉजिटिव एज वेल एज आर इज लेस देन 0, इस केस में आपको मिलेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा. ठीक है. इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, if it is equal to 0, we can't say anything. ये हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है. We can't say anything. If it is less than 0, then what we need to say? If it is less than 0, RT minus S square is less than 0, then what? There won't be maxima, there won't be minima. यही था. एक बार और चेक कर लेते हैं, रुक जाइए. यस मैम, सैडल पॉइंट. सैडल पॉइंट लिखा है ना. हाँ, तो इस केस में क्या होगा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. तो इसके लिए वर्ड आप यूज करेंगे सैडल पॉइंट. दैट पॉइंट, ये स्टेशनरी पॉइंट जो हमने लिया था ना अभी, जिसको नाम दिया था हमने स्टेशनरी पॉइंट्स का, तो इनको अब हम नया नाम दे देंगे सैडल पॉइंट्स आर देयर. सैडल पॉइंट्स, नो मैक्सिमा नो मिनिमा. तो 3 पॉसिबल केसेस बनते हैं. Again, I am repeating, RT minus S square greater than 0 and R also greater than 0, minima. RT minus S square greater than 0 and R is smaller than 0. तो maxima बनेगा यहाँ पे, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो वी कांट से एनीथिंग बियॉन्ड सिलेबस. सीधा सीधा नोट कर देंगे आप एग्जाम में, बियॉन्ड सिलेबस, या फिर आप बताइए फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर है. ठीक है. अच्छा, थर्ड केस क्या बनता है, थर्ड पॉसिबिलिटी है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव आए. भाई आर टी माइनस एस स्क्वायर है क्या, एक फंक्शनल पार्शियल डेरिवेटिव्स है, और जब आप उस पर कोई कांस्टेंट वैल्यूज रख दिया, दीज आर कांस्टेंट वैल्यूज, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगा. और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इट इज अ नंबर. द नंबर कैन बी पॉजिटिव, नंबर कैन बी नेगेटिव, नंबर कैन बी 0. 3 पॉसिबिलिटी, इससे ज्यादा और तो कुछ है नहीं. तो थर्ड पॉसिबिलिटी में आप सीधा सीधा बता दीजिए नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. These are saddle points. So these are the states. So now it is clear to everyone. Yes ma'am. What about other students? Why are you keeping quiet? Yes ma'am. So should I proceed to next slide, bete? Yes ma'am. अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं. ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी. ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा. फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था अभी आपको मैंने, क्या करना होता है, स्टेशनरी पॉइंट. चलिए स्टेशनरी पॉइंट्स फटाफट निकालिए अपनी कॉपी में. स्टेशनरी पॉइंट्स आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डेल एफ डेल एक्स निकालिएगा. तो डेल एफ डेल एक्स क्या बनेगा, इसके लिए पार्शियल डिफरेंशिएट करो फटाफट. एक्स के रिस्पेक्ट में बेटा, X के रिस्पेक्ट में 3 del x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, 3ay. डेल एफ डेल एक्स को 0 कर दीजिए. डेल एफ डेल वाई निकालो फटाफट. 3y स्क्वायर माइनस
3ax इक्वल 0। तो यहां से आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई 0 और यहां से आ रहा है आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 3ax0। 1 से y का वैल्यू निकालो। 1 से y कितना आ रहा है भाई? एक्स स्क्वायर अपॉन ए। इसको पुट कर दो 2 में। एक्स स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 3ax इज इक्वल टू 0। मैम वो 3 नहीं आएगा, 3ax नहीं होगा। अच्छा हाँ, ये थैंक यू बेटा, ये 3 तो कैंसिल हो गया था। x to the power 4 a square minus ax0 x cube minus a cube इक्वल 0। x कॉमन ले लिया हमने, a से मल्टीप्लाई कर दिया तो यह आ जाएगा दिस इम्प्लाइज x0 x क्यूब माइनस a क्यूब 0। तो अब हमें क्या क्या मिल जाएगा यहाँ से? x0 x माइनस a, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? ax प्लस a स्क्वायर 0। तो फाइनली x0 मिला हमें। ये तो इमेजिनरी वैल्यू देगा, तो इमेजिनरी वैल्यू को छोड़ दीजिए, रूल्ड आउट इमेजिनरी वैल्यू। तो एक वैल्यू x0 मिल रहा है और एक हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू a। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए ये वैल्यू, किसी भी एक में कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन 1 a स्क्वायर माइनस ए वाई 0। जब x को a लेते हैं तो इस केस में y भी a आ गया, तो एक पॉइंट बन जाएगा हमारा स्टेशनरी पॉइंट a कॉमा a, और 0 करेंगे तो क्या बन रहा है? 0 0 बन रहा है। तो दूसरा पॉइंट हमारा बन रहा है 0 कॉमा 0। टिल दिस स्टेप स्टूडेंट्स ओके, यस और नो? यस मैम। एवरीवन, एक या दो बच्चों का आवाज आता है, बाकी Yes, yes ma'am. ma'am यस मैम। यस मैम। स्टेशनरी करेक्ट, स्टेशनरी पॉइंट्स आपके पास आ गया P1 एंड P2। स्टेशनरी पॉइंट्स P1 एंड P2। फाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। तो अब हमें फर्स्ट स्टेप में तो ये निकाला हमने, सेकेंड स्टेप पे क्या करना होता है? RST निकालना होता है। शुड आई प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड? हाँ, डबल डेरिवेटिव करके RST निकालिए और मुझे आप बताएंगे डायरेक्ट। इतना सबकी कॉपी में आ गया बेटे? नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? हाँ देखो बेटे, ये जो आपने निकाला अभी, इसी को 2 बार डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से r निकल आएगा। इसको y के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो t निकल आएगा, और किसी भी एक को दूसरे वेरिएबल के टर्म में कर दोगे तो s निकल आएगा। फटाफट निकालिए अपनी कॉपी में और बताइए मुझे RST। स्टूडेंट्स RST निकालो भाई। मैम r2x आ रहा है, s2y नो सॉरी t2y आ रहा है। r कितना आ रहा है? 2x यस मैम एंड And t ma'am, आ रहा है 2y एंड s कितना आ रहा है? हम 6x आएगा, मतलब 2x 6 आ रहा है, 6 आ रहा है भाई। तूने काट दिया, अब बस काटेंगे थोड़ा ना, इक्वेट 6x रखना है, ठीक है। हाँ, हाँ 6x और 6y। इसमें कराया ना हमने। और Yes, ma'am, s कितना आ रहा है? s what is s? -3a। यस minus -3a। 3a। ये हमारा कितना था? 3a। इसको डिफरेंशिएट किया आपने y के रिस्पेक्ट में, तो 3a। यस, वेरी मच करेक्ट। चलिए, तो आपके पास RST है, सेकेंड स्टेप में आपने निकाला था RST। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल वी डू?
वी विल चेक RT माइनस या हाँ RT माइनस एस स्क्वायर, वेरी मच करेक्ट। अब थर्ड स्टेप जो है हमारा वो है वी शुड चेक RT माइनस एस स्क्वायर। तो RT माइनस एस स्क्वायर क्या है यहाँ पे भाई? RT माइनस एस, RNT मल्टीप्लाई कर दिया आपने 6x इंटू 6y माइनस एस स्क्वायर। सो 36xy माइनस 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 प्लस में होगा, माइनस रहेगा, ये तो माइनस का स्क्वायर हो गया ना, तो ये प्लस हो गया, माइनस 9a स्क्वायर। सो दिस इज RT माइनस एस स्क्वायर। फाइन स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. so how many stationary points? We are having two stationary point, P1 a comma a, and another stationary point is 0 comma 0. So at P1 a comma a we should check first RT minus s square। तो ये निकालिएगा, RT माइनस एस स्क्वायर निकालिए। इसमें क्या आ रहा है देखिए, पुट कर दीजिए, x को भी a पुट 25a square. और y को भी a पुट करेंगे जब आप, तो RT माइनस एस स्क्वायर a कॉमा a पर आ रहा है आपका 36a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर। डिफरेंस कितना आया? 25a square. 25a स्क्वायर, 27. 27a स्क्वायर। 27 और ये क्या है आपका a क्या है? a स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है, यस और नो? दिस विल बी पॉजिटिव, यस और नो? Yes, ma'am. ये Positive बिकॉज होगा। स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है a का, तो ये पॉजिटिव होगा, तो Yes, डेफिनेटली ये आपका पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर है, तो a का कोई भी वैल्यू हो, चाहे प्लस हो या माइनस हो, एक्सेप्ट इमेजिनरी वैल्यू। अगर i के टर्म में होगा तब तो ये आपका क्या हो जाएगा? अगर आपने इसको i के टर्म में लिया है उस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट रियल वैल्यूज, है ना? तो रियल वैल्यूज पे ये पॉजिटिव है। फाइन स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. व्हाट नेक्स्ट? Ma'am, हम minimum होगा. R देखेंगे अब। -9a square। तो केस 1, व्हाट अबाउट R? R is del to f del x स्क्वायर एट a कॉमा a। पुट कर दीजिए इसमें 6 इंटू a। तो ये जो है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये कैसे डिसाइड करेंगे हम? नहीं कर ग्रेटर देन 0। तो इसको आप क्या करिए, दिस इज ग्रेटर देन 0 इफ a इज ग्रेटर देन 0, इफ a इज पॉजिटिव। फाइन। इफ तो इस केस में आपको मिलेगा मिनिमा। केस 2, if a is negative then there will be maxima, है ना? There will be maxima, but normally इस चीज को हम नहीं बताते हैं, जब तक हमें मेंशन नहीं किया ना, तो सीधा सीधा हम a को पॉजिटिव लेके ही चलेंगे। और आप बताइए कि देयर विल बी मिनिमा, जब पॉजिटिव होगा मिनिमा, पॉजिटिव होगा मिनिमा, ये बताना है आपको। तो r आपका पॉजिटिव है, मिनिमा आ गया। और अब निकाल लीजिए, ये तो आपने निकाला पॉइंट P1 a कॉमा a पे। सिमिलरली 0 0 पे क्या आ रहा है? 0 कॉमा 0 पे क्या है? -9a square। 36 तो 0 हो गया, हाँ, -9 RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 0 कॉमा 0 माइनस 9a स्क्वायर, इट्स नेगेटिव 9a स्क्वायर। सो देयर विल बी मैक्सिमा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? फंक्शन पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको। पहले यहां तक क्लियर है या नहीं, ये बताइए। Yes, ma'am. चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू? एज यू टोल्ड, एट a comma a there is मिनिमा। अब वो मिनिमम वैल्यू कितना है वो कैसे निकालेंगे? f क्या लिया था हमने, मतलब हमने क्या लिया था, नहीं ये क्या था, f क्या गिवन था?
टेल मी फास्ट, क्या नोट किया x भाई? cube plus y cube minus 3axy. x cube y cube minus 3axy was f. तो a Yes, sir. कॉमा a पे मिनिमम है, इसका मतलब है एक बार f पीछे वाली स्लाइड पर कर दो। a cube minus 3a into a. So 2a cube minus 3a cube minus a cube. f minimum value is equal to minus a cube. और इसके बाद आपने क्या बताया था? नेक्स्ट पॉइंट यू टोल्ड मी देयर इज मिनिमा, सॉरी देयर इज मैक्सिमा एट 0,0 देयर इज मैक्सिमा। तो 0 0 पुट कर दीजिए, तो ये क्या बन गया? f मैक्सिमम वैल्यू 0 क्यूब माइनस 3a इंटू 0 0 is the maximum value and this is the minimum value. Is it okay, students? मैम Yes. मैम एक बार पिछली स्लाइड पर कर दो। ये वाला मैम हो गया। ठीक है। तो अभी मुझे लगता है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हो, बाद में कॉपी पेस्ट करते रहते हो क्या? यस मैम। ये इतना ऐसा नहीं करना, इतना लेजी प्लीज भाई। साथ के साथ बहुत सारी चीजें नोट करते चलो, है ना। स्क्रीनशॉट लेते हो सेफर साइड, ठीक है, लेकिन बेटा आप इसको साथ के साथ वो करते चलिए, है ना, सॉल्व करते चलिए। ओके फाइन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। इसको सॉल्व करिए चलिए बहुत जल्दी। आप बताइए कि आपका आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1/7 3/14 पे सभी अपनी कॉपी में करेंगे, कोई भी स्टूडेंट स्क्रीन नहीं देखेगा। Everyone will solve in your copy. Check yourself और फिर मेरे को करेक्ट करिएगा। मैं बीच में गलतियां करूंगी, आप मुझे बताएंगे कि कहाँ मैं गलत कर रही हूँ। क्या रहा है एक्स वाई, बताइए। स्टेशनरी पॉइंट क्या निकल के आया भाई इन दोनों को सॉल्व किया तो? अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से निकाल लो, जल्दी हो जाएगा बेटे। एक्स को हाइड कर दीजिए यहाँ पे 6 10 -2 -3 हो गया, इज इक्वल टू -y कर दो, इज इक्वल टू 1 कर दो। यस मैम आ गया मैम। हाँ बताइए कितना आ रहा है? हम x आ रहा है 1/7 और y आ रहा है 3/14। करेक्ट।
तो ये वाला जो वैल्यू है ये आ गया आपका स्टेशनरी पॉइंट, है ना। फिर जब आपने इसको यहां से लिया, इसको हाइड कर देंगे तो 5 6 -2 -3, और जब इसको कर दिया आपने लास्ट वाले को, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 5 6 6 10। हाँ, तो आपने बोला इसको सिंप्लीफाई जब हमने करा सॉल्व करके, तो कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल के आ रहे हैं। ये एग्जाम में गिवन नहीं होगा, तो प्लीज आप इसको ध्यान रखिएगा, ध्यान से करेंगे कैलकुलेशन, नो कैलकुलेशन मिस्टेक। तो जो P1 स्टेशनरी पॉइंट आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 1/7, 3/14। दिस इज द स्टेशनरी पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द स्टेशनरी पॉइंट। फर्स्ट स्टेप सभी का हो गया भाई, चेक करो जिनका नहीं हुआ। डोंट ट्रस्ट ऑन एनीवन, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ and just check it whether are you getting this value or not. जब हो जाए तो फिर RST निकाल लो, RST। वैष्णवी गोयल जी, आर क्या बना? Vaishnavi, I will mark you guys absent if you are not replying to my question. Nobody will give me the excuse there is no network and all those. Please. Ma'am, doing. अरे यहाँ पे देखो वैष्णवी, स्क्रीन पे देखो यार, व्हाट आर यू डूइंग? पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर ऑलरेडी है, इसमें क्या यू आर डूइंग? नो नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट बाय इंस्पेक्शन यू कैन से। सिंगल टाइम देखो डिफरेंशिएट किया था ना हमने इससे, तो ये क्या आया था बताइए? सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन पे ये रिजल्ट था आपके पास। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो यार एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा बेटा, बोलो जल्दी। 10. टी क्या बनेगा? इसको डिफरेंशिएट करो वाई के रिस्पेक्ट में, 20. एस क्या बना? किसी भी एक को, इसको ले लो वाई के रिस्पेक्ट में, एस को लेके एक्स के रिस्पेक्ट में, दोनों में से कोई भी ले लो। इसको आपने वाई के रिस्पेक्ट में किया तो मैम 5 होगा ना मैम, आर का वैल्यू सिंपलीफाई करके। सिंपलीफाई क्यों करना है बेटा? आप क्या अच्छा। सिंपलीफाई कर रहे हो बताओ? इसमें सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, जीरो वीरो से इक्वेट नहीं करना है। मतलब मुझे समझ नहीं आया, कहाँ से निकाला तुमने यार? मैम 2 से सबको डिवाइड कर दिया मैम सबको। अरे तो जीरो को नहीं कंसीडर करना है भाई, ये नहीं करो गलती। ये पिछले वाले स्लाइड में भी किसी बच्चे ने ये गलती किया था। सिर्फ इसको ऐसे देखो बेटा, ये तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम जीरो से इक्वेट करते हैं। हाँ प्लीज, नोबडी विल डू दिस। ये सिली मिस्टेक्स जो करते हैं ना आप लोग, ये मत करिए। जीरो वीरो को भूल जाओ भाई, डेल एफ डेल एक्स याद रखो, डेल एफ डेल वाई याद रखो बेटे। ऐसे अगर करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। नोबडी विल डू दिस सिली मिस्टेक। प्लीज मेक श्योर कि आप जीरो से इक्वेट नहीं करें। जीरो से इक्वेट तो हम कब करते हैं? फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स ओनली। स्टेशनरी पॉइंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो एंड these are the points for stationary point। कोई भी स्टूडेंट ये गलती नहीं करेगा, दोबारा से बता रही हूँ मैं, प्लीज मेक श्योर। ये जीरो हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप में करेंगे, सेकेंड स्टेप में इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे, कोई भी कॉमन नहीं निकालेगा। मेक श्योर नोबडी विल टेक एनी नंबर एज कॉमन। हाँ, तो इसी को डायरेक्ट करो, यहीं से निकालो आर, यहीं से निकालो टी। कुछ भी कॉमन आ रहा है, नोबडी विल डिवाइड एनीथिंग। इसको डिफरेंशिएट करके एस निकाल लो। इन दोनों में से कुछ भी करोगे आप तो आपको एस निकल के आएगा, है ना। चाहे इसको वाई के रिस्पेक्ट में कर दो या इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है फाइन स्टूडेंट्स। आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आ रहा है? 10 into 20 minus 12 का स्क्वायर 56 आ रहा है ना। 56, तो ये है पॉजिटिव। फाइन स्टूडेंट्स, इतना सभी बच्चों की कॉपी में हो गया ये? एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anyone left? Till this step, anyone left? Students? आप लोग को डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है बेटा? No, ma'am. वॉइस क्लियर है सभी को?
यस मैम। चलिए इसके बाद क्या करना है आपको, आर टी माइनस एस इसको निकाल के बस वो चेक करना था। आर एंड यहीं पे कर दूं क्या मैं, फिर से नए स्लाइड में देखना पड़ेगा मुझे बार बार, तो मैं यही कर रही हूँ। आप लोग थोड़ा सा इसको अपने इस पे कर लीजिएगा क्लैरिटी के साथ, मैं यही कर देती हूँ, ठीक है बेटे। आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर आपने निकाला, आर क्या था भाई 10, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों ही पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, मिनिमम, देयर विल बी मिनिमम, देयर विल बी मिनिमम। लेकिन हमें अब इसको तो वो को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, हम इसमें एक्स वाई के टर्म तो है ही नहीं कि हम ये वैल्यू पुट करते हैं, एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है, और डायरेक्ट आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि आर का वैल्यू मिनिमम है, आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो आपका पॉजिटिव है। सो फाइनली व्हाट यू कैन से, देयर विल बी मिनिमम। फाइन स्टूडेंट्स, यस मैम। शुड आई प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मिनिमम हमने बता दिया आंसर, देयर विल बी मिनिमम। और चाहे तो आप ये पॉइंट भी नोट कर दीजिए, एट 1/7 3/14। So should I proceed to next slide? Yes, ma'am. This, find the minimum value of this, ये भी निकाल लेंगे आप लोग। Should I proceed to next question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This one, चलो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको सॉल्व करते हैं। f of x comma y is given sin x into sin y sin x plus y। डेल एफ डेल एक्स निकालिए, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो y कांस्टेंट होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लेके डिफरेंशिएट कर दो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। Sin y into sin 2x plus y. यस, वेरी मच करेक्ट, वेल डन। साइन x प्लस 2y हो जाएगा ये, ठीक है, नहीं 2x प्लस y बोला ना, Yes, ma'am. 2x plus y sin a into cos b प्लस cos a into sin b का फॉर्मूला आपने लगा दिया। चलिए, तो डेल एफ डेल एक्स आपके पास आ गया, डेल एफ डेल एक्स, यू हैव डेल एफ डेल एक्स। सिमिलरली डेल एफ डेल वाई आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस 2y। इज इट ओके स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. तो आपके पास टू पार्शियल डेरिवेटिव्स निकल के आ गए हैं, डेल एफ डेल एक्स एंड डेल एफ डेल वाई। अब आपको क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, 0 से 8. यह फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स डेल एफ डेल एक्स 0 कर दीजिए, साइन 2x प्लस वाई इंटू साइन y 0, एफ वाई को भी 0 कर दो, तो इन दोनों से क्या वैल्यू निकल के आ रहा है इसका, xy 0. साइन x 0 है तो x क्या होता है, 0. बस जनरल वैल्यू, इन जनरल क्या होता है बताइए,
n pi x is equal to n pi. Sin x0 means x is equal to n pi. Cos x0 means x is equal to 2n plus 1 pi by 2. Cos n pi is given by -1 to the power n. तो ये कुछ चीजें अच्छे से याद रखना है आपको. And sin 2n plus 1 pi by 2 is -1 to the power n. Okay, so make sure you should know these values. Verify करके चेक कर सकते हैं. तो अभी वाले केस में आपने क्या बताया? हाँ, जो हमारे पास रिलेशन निकल के आए थे वो था sin 2x plus y into sin y equals 0, और एक आपके पास रिलेशन निकल के आया था sin x plus 2y into sin x equals 0. तो यहां से क्या आ रहा है? sin 2x plus y 0 और sin y 0. यहां से आपके पास निकल के आया है sin x plus 2y equals 0 और sin x 0. तो इससे तो आपको x0 y0 मिल जाएगा. और यहां से क्या आएगा? sin x plus 2x plus y0 implies 2x plus y is equal to n pi. यहां से आएगा x plus 2y is equal to n pi. This is the general value. n is integer. Fine. तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और इस पे बेस्ड हम फिर स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल के विल प्रोसीड फर्दर. चलिए. मैम हाँ बताइए. मैम एक बार पिछली स्लाइड दिखाना. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2. Have you done? यस Yes. ये आ गया. अब इसको सॉल्व करिए. ये जो इक्वेशन बन के आ रहा है ना, अब n आप 0 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, नॉन जीरो वैल्यूज के लिए भी. 0 के लिए तो हमें 0 0 pi by 3 and 2 pi by 3. क्यों, कैसे निकाला बताइए? बताइएगा कैसे निकाला. मैम सॉल्व किया है मैम. एक बार पहले यानी कि 0 लेके किया, उसके बाद जैसे कि बढ़ाते बढ़ाते. हाँ, क्या लिया आपने बताइए. आई गो विद यू. बोलो क्या लूं मैं. 0 ले लेना है पहले एक बार. 0 में तो 0 0 ही आएगा. जो आपने आंसर बताया वो तो 0 पे आएगा नहीं, दोनों वैल्यू. हाँ, फिर 1 आएगा. 1 लेंगे. 1 किसको 1 ले बताइए. n को. n को 1 ले लें. फॉर n इज इक्वल टू 1. वेरी मच करेक्ट. फॉर n इज इक्वल टू 1 जब आप करेंगे 2x प्लस y इज इक्वल टू पाई, x प्लस 2y इज इक्वल टू पाई. इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप. तो ये क्या आ जाएगा? सपोज इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, सबट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बन गया? ये कैंसिल हो जाएगा. -3y माइनस पाई. तो y इज इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया. y का वैल्यू पाई बाई 3 रख देते हम. 2x प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई. तो 2x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3. 2 कैंसिल हो गया. तो फाइनली एक पॉइंट आपने मुझे बताया पाई बाई 3, पाई बाई 3. दिस इज अ फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट. 0 0 भी आएगा एक. x को 0 और y को 0 लेंगे, वो भी एक स्टेशनरी पॉइंट आएगा. हम उसको सेकेंड स्टेशनरी पॉइंट ले लें. किसी को भी किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, डजंट मैटर. सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या बताया आपने? हम 2 pi by 3. यस, वेरी मच करेक्ट. तो जब आप इसको 2 पाई बाई 3 लेंगे ना, n इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा? 2x. व्हाट्स द इशू?
जब आपने n का वैल्यू 0 लिया तो 0,0 आ रहा है. व्हेन यू आर टेकिंग n इज इक्वल टू 1, तो इस केस में आपको मिल गया ये वाला वैल्यू. n इज इक्वल टू 2 के लिए आपको क्या मिल जाएगा? n इज इक्वल टू 2 के लिए आपको मिल जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 पाई. x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 पाई. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड वाले को और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बन गया माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा. -3y इज इक्वल टू -2 पाई. तो y निकल के आ गया 2 पाई बाई 3. सिमिलरली x भी आ जाएगा 2 पाई बाई 3. तो फाइनली स्टेशनरी पॉइंट्स आपको क्या मिल रहे हैं? वी आर, I should take new slide first. हाँ, तो अभी देखिए स्टेशनरी पॉइंट्स हमारे क्या निकल के आए. जीरो कॉमा 0, पाई बाई 3 कॉमा पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3. So these are the stationary points. चलिए RST निकालिए फटाफट. Everyone please solve it fast. RST बताइएगा. R क्या है, S क्या है, T क्या है? मैम आर है साइन वाई इंटू कॉस 2x प्लस वाई इंटू 2. पहले वो बताना मुझे. एफ ऑफ एक्स क्या था? साइन वाई इंटू साइन 2x प्लस वाई था. वेरी मच करेक्ट. तो इसको x के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट कर दिया. साइन वाई इंटू कॉस 2x प्लस वाई इंटू 2 इंटू 1 प्लस 0. तो ये 2 भी आ जाएगा यहाँ पे, है ना. और वो क्या था? एफ वाई आपका साइन एक्स प्लस 2y था. तो इसको y के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे आप. x साइन x वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा कॉस ऑफ x प्लस 2y, और इसको y के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएट किया है आपने पार्शियल. तो चेन रूल लगा के ये वैल्यू आपके आगे t की. s क्या आया भाई? अच्छा, ये 2 भी आ रहा है साथ में या नहीं? यस और नो? आएगा मैम 2 तो. यस मैम आएगा. यस S मैम. 2 आ रहा है मैम. S Yes, क्या ma'am. बनेगा बताइए? करेक्ट, वेरी मच करेक्ट. R आ गया, T आ गया. S निकालो भाई. वो बताओ, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाइए और प्रोडक्ट रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट कर दो. फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लेके y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए पार्शियली. फर्स्ट फंक्शन differentiation of second function differentiation of first function. तो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा ना, तो साइन ऑफ 2x प्लस 2y. फाइन स्टूडेंट्स, चेक कर लीजिए. अब इसके बाद आप निकालेंगे RT माइनस एस स्क्वायर. थर्ड स्टेप RT माइनस एस स्क्वायर है आपका. इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आप. साइन x साइन y कॉस ऑफ 2x प्लस y इंटू कॉस ऑफ x प्लस 2y. मेक श्योर एंगल जहां पे भी लिया है ब्रैकेट बनाएंगे आप. साइन स्क्वायर 2x प्लस 2y. सो नाउ यू हैव RT माइनस एस स्क्वायर. अब डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करते जाइए फॉर P1 P2 P3. तो सारे वैल्यूज के लिए चेक करेंगे. फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों केसेस में देखिए कि क्या आ रहा है. एट 0,0
RT माइनस एस स्क्वायर क्या बना एट मैम 2 × 2 भी तो आएगा। 2 × 2 कहाँ पर आएगा? अच्छा हाँ रुक जाओ, ये भी लगा। 4 से स्टार्ट हो कहाँ पे आएगा 2 × 2? हम्म, RT में ना, यहाँ पे 4 आएगा। हाँ, ठीक है। अभी ठीक है? यस मैम। करेक्ट, थैंक यू। ये करेक्शन सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे। 4 लगा देना भाई साथ में, क्योंकि एक 2 भी रह गया था ये वाला हमारा। हाँ, तो अब इन सारे पॉइंट्स पे एक बार चेक करिए कि क्या आ रहा है। एट 2π/3 कैलकुलेटर आपके पास है ना, तो ये एंगल का वैल्यू डाल के देखो फटाफट और बताओ मुझे कितना आ रहा है। 0 0 पे क्या बनेगा? सारे 0 हो जा रहे हैं ना, 0 पे तो ये 0 हो जाएगा। RT माइनस एस स्क्वायर बिकम 0 कॉस ये जो है RT माइनस एस स्क्वायर 0, 0 पे 0, तो 0 होने पे तो आप बताएंगे बियॉन्ड सिलेबस, फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, वी कांट से एनीथिंग। हाँ, π/3 पे बताइए। साइन π/3, साइन 60 डिग्री कितना आएगा भाई? साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है। √3/2 √3/2 रूट, और कॉस यहाँ पे कितना बन रहा है? 2π/3 प्लस π/3, 3π/3 कॉस पाई माइनस आता है ना, -1 -1। cos 2π/3 π/3, 3π/3 हो गया cos पाई होता है -1, तो ये वाला वैल्यू -1 आएगा, ये -1 आएगा, ये आपका आ गया √3/2, ये √3/2, तो यहाँ पे ये वैल्यूज आ रहे हैं। अब ये कितना बन जाएगा? 2π/3 2π/3 4π/3, 4π/3 का वैल्यू क्या होता है? पाई प्लस π/3। 180 प्लस थीटा में साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। एड शुगर टू कॉफी, तो पाई प्लस इस पर 10 पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस, लेकिन स्क्वायर होके प्लस बन गया ना ये, तो ये बन जाएगा। शुड आई प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड? ये सारा यस कैलकुलेशन मैम। जाना मैम पड़ेगा। पिछली वाली स्लाइड दिखा दो एक बार। अच्छा, ये लो। बाकी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में कंप्लीट करके मुझे बताएंगे। मैम अब इससे अगली बार। इससे पहली वाली, ये वाली नो मैम, जिस पे 10th वाली 10th स्लाइड, एक मिनट, ये लो। तो 10th ही तो चल रहा था अभी। मैम हो गई। ओके, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा बताओ भाई मुझे कितना आ रहा है? इस पर निकालो वैल्यू। 2π/3 2π/3 4π/3 हो गया। 4π/3 को हम क्या ले सकते हैं? साइन पाई प्लस π/3 ले सकते हैं। 180 प्लस थीटा में माइनस साइन थीटा हो जाता है ना, तो ये आपका आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा पे साइन π/3, साइन π/3 होता है 2/√3, सॉरी √3/2 का स्क्वायर। तो फाइनल कितना आ रहा है वैल्यू? सब ना कैलकुलेटर पे। 9/4। हाँ, ये √3/2 स्क्वायर बना, तो कितना बताया आपने? 9/4। 9/4 सभी का आ रहा है ये इतना स्टूडेंट्स? हाँ, तो इस पे क्या आया फिर? 9/4 पर हमारा RT माइनस एस स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया। RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है, और R क्या आएगा? R का वैल्यू निकाल लो सेपरेटली। ये वाला पोर्शन R था ना, ये तो 2 × √3/2 -1। R नेगेटिव आ रहा है इस पे, ये -1 देगा ना cos पाई। R is negative or not?
प्लीज डू कैलकुलेशन, डोंट ट्रस्ट ऑन एनीबडी। मैथमेटिक्स का फंडा यही है, जितना दूसरों पे ट्रस्ट करोगे उतने पीछे होते चले जाओगे, जब तक सेल्फ ट्राई नहीं करोगे। प्लीज ट्राई योर ओन। आर निकालना है बेटा, ये पाई बाय 3 ले लो। माइनस में जाएगा और हाँ, आर जो है वो माइनस में जाएगा। डोंट ट्रस्ट ऑन ज्योति सिन्हा, डोंट ट्रस्ट ऑन आशुतोष नेगी, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, चेक इट प्लीज। पेन और पेन चलते रहना चाहिए, जितना आप पेन आज चलाओगे ना उतने ही जीरो बढ़ाते जाओ अपने अर्निंग पे, ठीक है। तो बिल्कुल पेन चलते रहना चाहिए बेटा आप लोगों का। हो गया स्टूडेंट्स? शुड आई प्रोसीड? तो फाइनली आपने क्या बताया? 0 पे हमें क्या मिला? फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। वी कांट टेल एनीथिंग बिकॉज 0 आ गया था ये, ठीक है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। सेकेंड पॉइंट आपने मुझे बताया पाई बाय 3 पे क्या निकल के आया था? मिनिमा। आर नेगेटिव हो रहा है, नहीं सॉरी, आर नेगेटिव है तो मैक्सिमा आएगा। आर नेगेटिव बताया ना, देयर विल बी मैक्सिमा एट पाई बाय 3। और इसके बाद 2 पाई बाय 3 पे भी ऐसे ही चेक कर लेंगे आप, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। दिस वन स्टूडेंट्स, यस और नो? बताइए क्या हो गया भाई, चुप क्यों बैठ गए आप लोग? नो। नो? एक क्वेश्चन कर लो बेटा, फिर कल एक वाला टॉपिक करा दूंगी, लैग्रांजेस मैक्सिमा मिनिमा। प्लीज एक 5 मिनट दो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतना नहीं करो, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट दो, ठीक है स्टूडेंट्स? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हाँ, देखिए अब आपके पास है ये क्या फंक्शन है इन दिस वे। एवरीवन प्लीज पे फुल कंसंट्रेशन ऑन स्क्रीन। आई विल नॉट रिपीट दिस क्वेश्चन। तो अभी इसको देख लो, बस 2 मिनट करके देखते हैं हम। ये एफ आपके सामने है, डेल एफ डेल एक्स क्या आएगा? हु कैन टेल मी फास्ट? मेक श्योर। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। यस, प्रोडक्ट रूल लगेगा। और ये वाला रूल भी याद रखो, e to the power f of x into f dash x। तो ये आपका क्या बन जाएगा? फर्स्ट फंक्शन मैम 2x डॉट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इंटू चेन रूल लगाओ। इसको भी डिफरेंशिएट करना है बेटा, इस पूरे को जो एक्सपोनेंट में आ रहा है ना, ये देखो नहीं मैम, उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया ना। मैंने पहले वाला डिफरेंशिएट कर दिया ना। अच्छा ठीक है, तुमने उसको किया था। तो e टू द पावर, मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन लिया ना, फर्स्ट फंक्शन आपने इसको फर्स्ट ले लिया था, ओके। ये आ जाएगा इनटू 2x। फाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। तो डेल एफ डेल एक्स आपके पास आ गया। अब डेल एफ डेल एक्स इज e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर into x square plus y square into 2x। del f del y, similarly del f del y, tell me fast। मैम 2y डॉट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे एक और टर्म आएगी मैम वहाँ पे। जस्ट वेट, ये किया था रुको, ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड हमने ये किया था, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ये करा हमने, है ना। तो यहाँ पे और क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2x ये था ना, और x आपने बाहर निकाल लिया। 2x को बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा? 2x भी कॉमन लिया ना। अच्छा हाँ मैम, वो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कॉमन लिया आपने यहां से, ठीक है, और x कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। तो फाइनली क्या बचा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x।
e to the power minus x square y square into 2x into 1 minus x square y square. ये yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. X e to the power x square y square 1 minus x square. Now it is clear to you guys. अब ऐसे ही y के लिए निकाल लो, तो डायरेक्ट जब हम y के लिए निकालेंगे तो ये सब करने के बजाय यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो, 2 कॉपी कर दो, y x को y से रिप्लेस कर दो, अदर टर्म्स कीप इट एज इट इज 1 माइनस x माइनस y. ठीक है, ये डेल एफ डेल एक्स आ गया. आरएसटी निकालिए. नहीं, पहले वो निकालो, स्टेशनरी पॉइंट निकालो, दोनों को 0 से इक्वेट कर दो. हम वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा ना. यस, दोनों को 0 से इक्वेट करो. क्या आया? मैम एक्स वाई 0 आएगा. x 0 y 0. फाइन, एक ही पॉइंट मिल रहा स्टेशनरी पॉइंट. बाकी इमेजिनरी वैल्यूज मिल रहे हैं. ये स्टेशनरी पॉइंट आ गया. अब इस पर आरएसटी निकाल लेंगे आप, आरएसटी, और चेक करके बताइएगा कि आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ. आप लोग का लंच टाइम हो गया अभी, और चेक करेंगे कि ये आपको 0 पे मिनिमम मिल रहा है या नहीं. टुमारो विल डिस्कस लेग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स फॉर मैक्सिमम मिनिमम. फाइन स्टूडेंट्स, बस 2 मिनट दो, अटेंडेंस डाउनलोड कर लेते.